بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام صارفین کو ایک مرتبہ پھر ریئیکشن مائنڈ چینل میں خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائیں اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ ناظرین، بہت سے لوگوں کی پرزور فرمائش کے اوپر آج ہم آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ہے دنیا کے ٹاپ 10 امیر لوگوں کے بارے میں۔ تو بنا کسی ٹائم ویسٹ کیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ہمیں کون سے ایسے 10 لوگ ہیں جو امیر ترین ہیں۔ دنیا کی 10 سب سے امیر شاہی شخصیات، 10 richest royals in the world۔ نمبر 10، پرنس البرٹ II آف موناکو، ایسٹیمیٹڈ نیٹ ورتھ $1 بلین۔ دوستو، دنیا کے 10 سب سے امیر شاہی افراد کی لسٹ میں 10ویں نمبر پر موناکو نامی ایک چھوٹے سے مگر انتہائی امیر ملک کے پرنس البرٹ، یہ دیکھیں دوستو 10ویں نمبر پہ پرنس البرٹ آ رہے ہیں اس وقت، اور ضرورت پڑنے پر یہ اپنے ہمسایہ ملک لیکن ان کے اپنے ملک کی کوئی آرمی بھی نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں اس وقت 63 سال کے ہیں اور اپنے ملک موناکو کے علاوہ فرانس میں بھی بہت سی کمرشل ریل اسٹیٹ کے مالک ہیں۔ ان کا خاندان ہاؤس آف گریمادی پچھلی 7 صدیوں سے موناکو پر راج کرتا چلا آ رہا ہے۔ پرنس البرٹ ہمیشہ سے ہی سپورٹس کے کافی شوقین رہے ہیں۔ سن 2000 میں ان کی ملاقات ساؤتھ افریقہ سے تعلق رکھنے والی ایک پروفیشنل تیراک شارلین وڈسٹاک سے ہوئی اور یہ اپنا دل ہار بیٹھے۔ 1 جولائی 2011 کو ان دونوں نے پورے ڈھول دھمکے کے ساتھ شادی کی اور اب اس لڑکی کو شارلین پرنسس آف موناکو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پرنس البرٹ اس وقت $1 بلین یعنی کہ پاکستانی 16,000 کروڑ روپے کے اثاثوں کے ساتھ 10ویں نمبر پر آتے ہیں۔ نمبر 9، کنگ محمد VI آف موراکو، ایسٹیمیٹڈ نیٹ ورتھ $2.1 بلین۔ دیکھیں ناظرین، دوستو ہماری لسٹ پر 9ویں نمبر پر موراکو نامی مسلمان ملک کے بادشاہ کنگ محمد آتے ہیں۔ 1999 میں اپنے والد کنگ حسن کی وفات کے بعد کنگ محمد بادشاہ کے تخت پر 9ویں نمبر پہ دیکھو دوستو کون آ رہے ہیں، کنگ محمد۔ یہ آ رہے ہیں، ان کی نیٹ ورک آپ دیکھیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے ہر سال $4,88,604 کی سیلری بھی ملتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک زبردست بزنس مین اور ایک بینکر بھی ہے۔ ان کی دولت کا ایک بڑا حصہ ان کے خاندانی بزنس المادا ہولڈنگ سے آتا ہے۔ ان کی یہ خاندانی کمپنی بینکنگ، ٹیلی کمیونیکیشن، رینیویبل انرجی بزنسز اور فوڈ انڈسٹری کے علاوہ کچھ دوسری انڈسٹریز میں بھی کافی ہیوی انویسٹمنٹ کر کے بیٹھی ہے۔ المادا نامی یہ کمپنی، لیکن ان کی اپنی ایک کمپنی بھی ہے المادا جو $42 بلین انویسٹ کر کے بیٹھی ہے۔ سلما بنامی نامی ایک لڑکی سے 2002 میں شادی کی جس سے ان کے 2 بچے بھی ہیں۔ آج ان کی نیٹ ورتھ $2.1 بلین ہے اور اگر آپ اسے پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کریں گے تو $2.1 بلین اور 32,000 کروڑ۔ نمبر 8، امیر شیخ تمیم بن حماد ال تھانی۔ لیکن ناظرین جو 8ویں نمبر پر آ رہے ہیں وہ ہیں قطر کے جو ہے نا وزیر اعظم۔ دوستو دنیا کی سب سے امیر شاہی شخصیات کی لسٹ میں 8ویں نمبر پر قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد ال تھانی آتے ہیں اور ان کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ یہ ویڈیو انجوائے کر رہے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ بھی دوستو اسی طرح جو ہے نا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ریئیکشن مائنڈ چینل کو جو ہے نا سبسکرائب کر کے ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ اسی طرح کی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تمیم اس وقت صرف 41 سال کے ہیں اور $2.5 بلین کے مالک ہیں۔ یہ کوئی کنجوس والا شیخ نہیں بلکہ سچ مچ میں امیر والے شیخ ہیں جن کی ساری دولت پیٹرول سے آتی ہے۔ ان کی دولت کا بڑا حصہ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی سے آتا ہے۔ یہ کمپنی ان کے خاندان کی ملکیت میں آتی ہے اور قطر کے پیٹرول اور دوسرے نیچرل ریسورسز کو ڈیل کرتی ہے۔ 2020 میں جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی اس وقت $300 بلین سے بھی زیادہ کے اثاثوں کو ڈیل کر رہی ہے۔ پرنس تمیم اس وقت انٹرنیشنل لیول پر قطر کے امیج کو بہتر بنانے میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرانس کی ایک فٹ بال ٹیم پیرس سینٹ جرمین FC بھی خرید رکھی ہے۔ اس کے علاوہ مشہور عرب نیوز چینل الجزیرہ کو برے حالات میں شیخ تمیم نے سہارا دیا جب انہوں نے ایک ہی جھٹکے میں الجزیرہ کو $137 ملین یعنی کہ پاکستانی 2,200 کروڑ روپے کی فنڈنگ دے ڈالی تھی۔ اب آتے ہیں کام کی بات پہ۔ شیخ تمیم نے اپنی پہلی شادی اپنی کزن شیخہ جوار بنت حماد ال تھانی سے سن 2005 میں کی۔ اس شادی سے ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ شیخ صاحب نے دوسری شادی 2009 میں شیخہ العنود بنت حمانہ الحاجری سے کی اور اس شادی سے بھی ان کے 5 بچے ہیں۔ 2014 میں شیخ صاحب نے ایک بار پھر خود کو پیٹرول والا امیر شیخ پروف کرتے ہوئے تیسری شادی بھی کر
कर डाली। इनकी तीसरी बीवी शेखा नूरा बिन्त हताल अल अधूरी है। इस शादी से इनके 4 बच्चे हैं। शेख तमीम की 3 शादियों से टोटल 13 बच्चे हैं और अभी ये सिर्फ 41 साल के हैं। नंबर 7, प्रिंस हांस एडम II ऑफ लिechtenstein, एस्टिमेटेड नेटवर्थ $3.5 बिलियन। दोस्तों हमारी लिस्ट पर 7वें नंबर पर लिechtenstein नामी एक छोटे से मगर इंतहाई अमीर मुल्क के शहजादे प्रिंस हांस एडम्स आते हैं। ये इस वक्त 76 साल के हैं और अपने खानदानी बिजनेस के मालिक हैं, जो कि इनके आबाओ अजदाद ने आज से 100 साल पहले बनाया। 100 साल पहले नाज़रीन देखिए, 100 साल पहले का बिजनेस अभी भी चल रहा है। सबसे बड़ी वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है। प्रिंस एडम को आर्ट्स में भी बहुत इंटरेस्ट है और इनकी मलकियत में बहुत सी ऐसी नायाब और कीमती पेंटिंग्स मौजूद हैं जिनके मालिक ये खुद हैं, मगर इनकी पेंटिंग्स को लिechtenstein म्यूजियम में आवेदा किया गया है ताकि इन्हें कोई भी देख सके। इनके बिजनेसेस यूरोप, अमेरिका, एशिया और मिडिल ईस्ट में भी फैले हुए हैं। प्रिंस एडम ने 1963 में अपनी कजन प्रिंसेस मैरी से शादी की। इनके 4 बच्चे भी हैं जो कि खुद भी अब कई बिलियन डॉलर्स के मालिक हैं। नंबर 6, ग्रैंड ड्यूक हेनरी ऑफ लग्जमबर्ग, एस्टिमेटेड नेटवर्थ $4 बिलियन। दुनिया के सबसे अमीर शाही अफराद की लिस्ट में 6ठे नंबर पर दुनिया के सबसे अमीर मुल्क लग्जमबर्ग के ग्रैंड ड्यूक हेनरी आते हैं। ये दुनिया के मशहूर बर्ग कैसल में अपनी बीवी और 5 बच्चों के साथ रहते हैं। 67 साल प्रिंस हेनरी सन 2000 से इस अहदे पर फाइज हैं। इनकी दौलत का बड़ा हिस्सा इन्हें अपने खानदान से मिला है, जिसमें पूरी दुनिया में कमर्शियल रियल एस्टेट शामिल है। इन्हें हर साल अपनी मुल्क की गवर्नमेंट की तरफ से $3 लाख की सालाना सैलरी भी मिलती है। इनका मुल्क लग्जमबर्ग पर कैपिटा इनकम के लिहाज से दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है, जिसके बारे में हम पहले ही एक मुकम्मल तफसील से वीडियो बना चुके हैं और आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रिंस हेनरी इस वक्त अपनी मलकियत में $4 बिलियन से ज्यादा के हिस्से रखते हैं, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 67,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन जाते हैं। नंबर 5, अमीर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ऑफ दुबई, एस्टिमेटेड नेटवर्थ $14 बिलियन। दोस्तों दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम को कौन नहीं जानता। आज दुबई जिस मुकाम पर पहुंचा है, इसमें इन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया है। जिस तरह इल्लामा इकबाल ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक आजाद मुल्क पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, इसी तरह शेख मोहम्मद बिन राशिद ने भी सहरा में बैठकर एक ऐसे शहर का ख्वाब देखा था जहां दुनिया भर से मुसलमान दिहाड़ी लगाने के लिए आए और दुनिया भर का अमीर गोरा अयाशी करने और पैसे खर्च करने आए। शेख साहब ने जिंदगी में कोई छोटा काम नहीं किया। इन्होंने अपनी जिंदगी में 6 शादियां की हैं, जिनसे इनके काफी ज्यादा बच्चे हैं। इसके अलावा शेख साहब के मुताबिक इनका पसंदीदा मशगला घोड़ों की रेस का है और इन्हें हॉर्स रेसिंग की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाला इंसान भी समझा जाता है। ये दुबई की मशहूर इमार प्रॉपर्टीज में भी शेयर रखते हैं, जिस कंपनी ने बुर्जुल खलीफा बनाया है और इस बुर्जुल खलीफा का पता यानी कि एड्रेस भी इन्हीं के नाम पर है, 1 शेख मोहम्मद बिन राशिद बुलेवर्ड। इसके अलावा ये दुबई नामी इस शाहाना यॉट के भी मालिक है। अगर आप इनके बारे में एक तफसील से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखकर हमें आगाह जरूर करें। नंबर 4, अमीर खलीफा बिन जैद अल नाहयान ऑफ अबू धाबी, एस्टिमेटेड नेटवर्थ $18 बिलियन। दोस्तों अगर पैसे में दुबई वाले शेर हैं तो अबू धाबी वाले सवा शेर। हमारी लिस्ट पर 4थे नंबर पर अबू धाबी के अमीर खलीफा बिन जैद अल नाहयान आते हैं। ये मुत्तहिदा अरब अमारात यानी कि पूरे UAE के प्रेसिडेंट भी हैं। खलीफा बिन जायद इस वक्त अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, जो कि पूरे अरब अमारात के तेल और गैस को कंट्रोल करती है। इनके हाथ में इतना बड़ा बिजनेस है जिसकी वैल्यू $500 बिलियन से भी ज्यादा की है। अब इस बात में कोई हैरत नहीं कि इनकी अपनी जाती नेटवर्थ भी $18 बिलियन यानी कि 3 लाख करोड़ रुपए की है। इनके खानदान के अमीर होने का अंदाजा एक बात से लगा लें कि इनका छोटा भाई मंसूर बिन जैद अल नाहयान इस वक्त 50 साल का है। दुनिया के मशहूर फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब को अपनी मलकियत में रखता है। खलीफा जैद अपने मुल्क के अलावा पूरे यूरोप खासकर लंदन में काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज के मालिक हैं। खलीफा जैद इतने अमीर हैं कि कुछ साल पहले लीक होने वाले पनामा पेपर्स में इन भाईजान का नाम भी शामिल था। पनामा पेपर्स के मुताबिक खलीफा साहब की सिर्फ लंदन में मौजूद प्रॉपर्टीज $1.7 बिलियन से ज्यादा की हैं। नंबर 3, किंग सलमान अब्दुल अजीज बिन सऊद ऑफ सऊदी अरेबिया, एस्टिमेटेड नेटवर्थ $20 बिलियन। दोस्तों पैसे की बात ये तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, आप भी जानते हैं इस बात को, बखूबी जानते हैं। सबसे अमीर शाही अफराद की लिस्ट में 3रे नंबर पर सऊदी अरब के किंग सलमान अब्दुल अजीज अल सऊद आते हैं। किंग सलमान बेशक यहाँ 3रे नंबर पर मौजूद है, मगर यहाँ ये याद रखें कि इनका खानदान हाउस ऑफ सऊद दुनिया का सबसे अमीर खानदान समझा जाता है। आप में से बहुत से लोग ये बात भी नहीं जानते होंगे कि किंग सलमान सऊदी बादशाह किंग अब्दुल अजीज के 25वें बेटे थे। आज ये हैं तो बादशाह, मगर सिर्फ कुर्सी पर बैठे रहते हैं। मुल्क का सारा निजाम अब इनका बेटा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS चला रहा है। किंग सलमान एक ऐसे खानदान का हिस्सा है जिसकी कुल दौलत ना तो मिल
मिलियंस में है ना ही बिलियंस में। इस खानदान की दौलत ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में है। अगर आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि ये दौलत कहां से आई, तो इसका जवाब है सऊदी अरामको। ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल निकालने की कंपनी है, जिसे सालाना रेवेन्यू के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माना जाता है। किंग सलमान आज 85 साल के हैं और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक ये 20 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा के असासे अपनी मलकियत में रखते हैं, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 3,30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन जाते हैं। नंबर 2, सुल्तान हसन अल बुलाकी ऑफ ब्रुनेई, एस्टिमेटेड नेटवर्थ 28 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों, दुनिया का दूसरा सबसे अमीर शाही फर्द होने का एजाज ब्रुनेई के हुक्मरान सुल्तान हसन अल बुलाकी को जाता है। आपको ये जानकर शदीद हैरत होगी कि बिल गेट्स से पहले दुनिया का सबसे अमीर आदमी ब्रुनेई के सुल्तान थे, मगर ना तो बिल गेट्स को इनकी तरह 6,000 स्पोर्ट्स कार्स का गिराज रखने का शौक था, और ना ही बिल गेट्स अपने छोटे भाई को हर हफ्ते $1 मिलियन पॉकेट मनी देता था। इसी वजह से आज सुल्तान हमारी लिस्ट पर दूसरे नंबर पर आते हैं। बरतानिया की मलकिया एलिजाबेथ के बाद सुल्तान हसन दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा अरसे तक तख्त नशीन रहने वाले फर्द भी हैं। इनकी दौलत भी तेल और गैस के खजानों से आती है, और इन्हें ये एहसास भी जाता है कि ये दुनिया के सबसे बड़े रेजिडेंशियल पैलेस में रहते हैं। इनके इस घर का नाम आस्ताना नूरुल ईमान है। ये घर इतना बड़ा है कि इसमें 1,788 कमरे मौजूद हैं। हम ब्रुनेई के सुल्तान पर भी पहले ही तफसील से एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये देखें दोस्तों, नंबर 1 के ऊपर कौन आ रहे हैं? कौन ऑफ थाईलैंड, एस्टिमेटेड नेटवर्थ 43 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों, दुनिया की सबसे अमीर शाही शख्सियत होने का थाईलैंड के किंग महा को जाता है। 63 साल किंग महा ने 2016 में अपने वालिद के मरने के बाद तख्त संभाला। इनका खानदान थाईलैंड में 16,210 एकड़ जमीन का मालिक है। ये कोई बंजर जमीन नहीं है। इनकी बनाई हुई प्रॉपर्टीज में लाखों अफराद रेंट पर रह रहे हैं। पूरे थाईलैंड में 40,000 से ज्यादा घरों से ये अंकल जी रेंट वसूल करते हैं, जिनमें से 17,000 से ज्यादा घर मुल्क के दारुल हुकूमत यानी कि बैंकॉक में आते हैं। इसके अलावा सायाम सीमेंट ग्रुप और सायाम कमर्शियल बैंक के मालिक भी यही अंकल जी हैं। अगर यही काफी नहीं तो दुनिया के सबसे बड़े गोल्डन जुबली डायमंड के मालिक भी थाईलैंड के बादशाह ही हैं। किंग महा दुनिया भर में अपने जबरदस्त लाइफ स्टाइल की वजह से मशहूर हैं। इन्हें किसी बात का खौफ नहीं कि अगर लोग भूखे भी मर रहे हैं तो इन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। कुछ साल पहले ये नशे से उठे तो ख्याल आया कि सामने खड़ी इनकी बॉडीगार्ड लड़की काफी खूबसूरत है और इससे शादी भी कर ली, और फिर ये तस्वीर सामने आई जिसने जैसे कि आग ही लगा दी हो, जिसमें लोग नौजुबिल्ला इन्हें सजदा कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें आपने जाना कि दुनिया के जो है ना सबसे 10 अमीर लोग कौन थे। नाज़रीन, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इस लिस्ट में जो है ना बिल गेट्स नहीं आए, और इलॉन मस्क नहीं आए, और जेफ बेजोस भी नहीं आए, और बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं यार जो मैं चाहता हूँ कि वो इस लिस्ट में होने चाहिए थे, लेकिन वो इस लिस्ट में नहीं है। क्या आप ये जानते हैं कि उनकी नेटवर्थ हो सकता है कि इनसे कम हो? ये भी हो सकता है ना कि उनकी नेटवर्क इन तमाम जो लोग 10 लोग जो दिखाए गए हैं इनसे कम हो। लेकिन यार मैं इस बात को मानने से मैं तो इस बात को नहीं मान सकता, क्योंकि मेरे ख्याल से इस वक्त दुनिया के जो सबसे अमीर तरीन इंसान है वो कौन होंगे? इलॉन मस्क होंगे दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान मेरे लिहाज से, क्योंकि मैं यही जानता हूँ कि उनका जो इतना बड़ा बिजनेस है, हैवी बिजनेस उन्होंने चला रखा है, इसकी बुनियाद पर वो दुनिया के सबसे अमीर तरीन बंदे होंगे। और दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? दूसरे नंबर पे आते हैं बिल गेट्स के बाद तीसरे नंबर पे कौन आते हैं? तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो हैं जेफ बेजोस, जिनका अमेज़ॉन है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए मुझे, और सांसों ने अगर वफा की तो एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे। इसी तरह अपना और अपने प्यारों का रखिए ख्याल, अपने माँ बाप की जो है ना दुआओं से आशना रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।